ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिदं दुःखभागं भवेतः। मैं श्री शंकर भगवान को नमस्कार करते हुए, देवी माता को नमस्कार करते हुए, आइए आज के प्रेजेंटेशन में आपके साथ कुछ और विचार को साझा कर रहा हूँ, जो कि सतत विकास लक्ष्य 2030 को लेकर के और आपदा प्रबंधन को लेकर के निर्दिष्ट है, ताकि जीवन लोग सुरक्षित रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। आप मेरे चैनल आईडी यूट्यूब पर जो है @चंदनमय विद्या पर, इस पे मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वीडियो लेक्चर्स और जो प्रस्तुतिकरण हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। आज के विषय में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ईश्वर की कृपा से हमें यह मानव जीवन मिला है और हमें इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, ताकि हम सीख सकें, पढ़ सकें, एक दूसरे का मदद कर सकें। ऐसा हमारा जीवन है। बौद्धिक प्राणी के रूप में हमको ईश्वर ने बनाया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं पहले। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम बेसिक ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस, लाइक हाउ आवर लाइफ cycle continues and completes and accomplishes its goal during the period of our lifetime. Everybody lives their life, and the journey of life begins as follows. As I conceived the concept I am sharing with you, like marriage, a male and a female member marries together as per their respective ceremony. Then copulation and contraception or conception, like the love relationships and pleasing appraisal assures like how marriage couple are living their life properly. If they are using contraceptive tools like malady, condom or other contraceptions, then it is okay, their love life will continue for long. Otherwise, female will gestate, female will conceive, and she will give the birth of a girl or boy child soon. So marriage, then copulation and conception or contraception, then cessation and ANC, antenatal care during the period of gestation, then birth, genetic inheritance and postnatal care, then childhood and growth monitoring, aging, death, nutrition, digestion, body fluids, circulations, excretion, respiration, water intake and osmoregulation, then sensual stimulations like watching, listening, tasting, smelling, touching, then neural control and coordination, chemical control and coordination, then tiredness, sleep and dreams, wake up and awakening, water intake and thermoregulation, reproduction, adaptation with respect to climatic conditions, then learning, understanding, remembering, forgetting and recalling, then personal feeling and socialization feeling, thinking, social interaction and conversation, verbal and non-verbal, as well as through expressions. People communicates with each other. Then locomotions and transportation, then community and organization behavior, socialization and governance, then induction to various civilization and ethnic groups during the exposure visit or interaction or international tours, then immigration and migration, work and services, hygiene and sanitation, infection, diseases and illness, obedience of healthy living precautions and immunization, treatment, healthcare and healing, then religion and spirituality, habitat and habitation management and other processes are also performed during human life cycle by human. You can interpret about this process also. Then mutations also regulates the process of life, and evolution of life is continuing since generations, since thousands and thousands of years, and probably it would continue, and the existence of life on this planet earth will continue. So I was talking about the sustainable development goal. Our other goals are, as goal number 14 is
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 इस जलीय जीवन का संरक्षण, 15 है स्तरीय जीवन का संरक्षण, 16 शांति और न्याय स्थापना को समर्पित सशक्त संगठन, 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साझेदारी। मानव जैविक प्रक्रिया के बारे में जो मैंने अभी बात किया कि विवाह होता है, संभोग और गर्भ निरोधन या गर्भधारण हो जाता है। उसके बाद गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व मातृ व गर्भस्थ भ्रूण या शिशु की देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रसव होता है, अनुवांशिक वंशानुगति होती है एवं प्रसव पश्चात मातृ व शिशु की देखभाल होती है। शैशवावस्था एवं वृद्धि निरीक्षण का पीरियड होता है। उम्र का बढ़ना है, मृत्यु है, पोषण प्राप्त करना, खाना पीना, पाचन है, शारीरिक द्रव्यों का संचरण है, उत्सर्जन है, श्वसन, जल अंतर्ग्रहण एवं जलीय साम्यावस्था नियमन, संवेदी अंगों से संवेदना प्राप्त करना जैसे देखना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, स्पर्श करना। तंत्रिका तंत्रीय शारीरिक नियंत्रण और समन्वय है। रासायनिक शारीरिक नियंत्रण और समन्वय है। थकान है। सोना और नींद में सपने देखना है। नींद से जागना और चेतना प्राप्त करना है। पानी ग्रहण करना और शारीरिक ताप नियंत्रण है। प्रजनन है। जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन प्राप्त करना। सीखना, समझना, याद रखना, भूल जाना और पुनरावृत्ति। व्यक्तिगत भावनाओं को एहसास करना और सामाजिक भावनाओं की अनुभूति है। सोच विचार करना है। सामाजिक व्यवहार और संवाद मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक है। चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना। अगली बात करते हैं सामुदायिक एवं संस्थागत व्यवहार है। सामाजिकरण एवं सरकार है। विभिन्न सभ्यता और मौलिक निवासियों से परिचय और मेल मिलाप की एक प्रक्रिया होती है। देश विदेश आना जाना, कार्य और सेवा करते हैं। साफ सफाई रखना और स्वच्छता की बात होती है। और संक्रमण से संक्रमित होना, बीमार पड़ना और बीमारी से होने वाली कमजोरी का सामना करना, इनका उपचार करवाना। स्वस्थ जीवन यापन की सावधानी, निर्देशों और परहेज का अनुपालन करना और टीकाकरण। उपचार, स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्राप्त करना और पुनः स्वस्थ होना। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं और क्रियाओं का अनुपालन। आवास और निवास स्थान का प्रबंधन करना। उपरोक्त के साथ साथ अपने मानवीय जीवन चक्र के दौरान मनुष्यों द्वारा और भी अन्य प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, जैसे उत्परिवर्तन हो गया, उद्विकास हो गया, आदि इत्यादि। अगली बात करते हैं अन्योन्य आश्रय संबंध और सहजीविता की बात होती है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप एंड सिम्बियोसिस की बात होती है, ताकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सभी का बना रहे। एक एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं। लाइक प्रूव दैट granting or acquisition of special drawing rights for resources to the United Nations would assure sustainability and efficacy of the peace building humanitarian services by United Nations and its allied organization। आज बात करते हैं जलीय जीवन के संरक्षण के बारे में। मैं अपना विचार साझा करता हूं, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 का 14वां लक्ष्य है। अभी हाल ही में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया है, जिसमें सभी विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार रखे भाई कि हम जलीय जीवन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ अपना बात भी रखना चाहूँगा। जैसे वैज्ञानिक इतिहास के अनुसार प्रारंभिक जीवन का उद्भव जल में ही हुआ था। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार भी सृष्टि के सृजन के समय सर्वप्रथम अनंत जल राशि में ज्योतिर्लिंग कमल पुष्प के रूप में शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा एवं विष्णु जी का सृजन किया। प्रेम सूर्य विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। इसके बाद ब्रह्मदेव ने सरस्वती देवी के साथ सृष्टि का सृजन किया और विष्णु भगवान क्षीर सागर में से इस ब्रह्मांड की सृष्टि का अनुपालन करते हैं। जलीय आवास में प्रोकैरियोट्स अकशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। पादप प्रजातियों में प्रारंभिक तौर पर कवक और शैवाल भी जल में ही पाए जाते हैं। लाल एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, कारा, वाउचेरिया और लाइकेन भी जलीय जीवन के उदाहरण हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस भी जल में पाए जाते हैं। जल स्रोत के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे ग्लेशियर, हिम नदी, झरना, नदी, नहर, तालाब, कुआं, नाली, अपशिष्ट जल प्रवाह, एस्च्यूरी क्षेत्र है या समुद्र है, और भी अन्य भी होते हैं। अब हर एक जल के बारे में बात करें तो जल का जब आप केमिकल एनालिसिस करते हैं, बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, फिजिकल एनालिसिस करते हैं,
तो इसके बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं, ख़ास तौर से जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है कि प्रेशर जल का सही हो, वॉल्यूम उसका क्या हो, सही हो, टर्बिड हो, साफ़ सुथरा जल हो, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सही होना चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सही होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा सही होनी चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वाटर, और टोटल कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म, इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। कंटामिनेशंस नहीं होना चाहिए उसमें, और सारे जो उसका सैलिनिटी कैसा है, एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, जनरली न्यूट्रल होना चाहिए उसका, तो अल्कलाइन टेस्ट भी उसका होता है। इस सारा चीज़ को जब हम देखते हैं तब जल के बारे में बात करते हैं कि जल क्या है, जीवन यापन के लिए उपयुक्त है, और इसके आधार पे भी ध्यान देना चाहिए। कशेरुकी जीवों में भी अगर बात करें तो कछुआ जैसे उभयचर प्राणी हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, छोटी और बड़ी मछलियां हैं, रेंगने वाले जीव हैं, रेप्टाइल्स, और मैमल्स में डॉल्फिन भी जलीय जीव होते हैं। खाद्य तंत्र में उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पर विभिन्न सजीव प्रजातियों में सजीवों की संख्या नियंत्रित रहने से खाद्य श्रृंखला में साम्यावस्था बनी रहती है। विशेष तौर से नदी और समुद्री मिलान के क्षेत्र जो एस्च्यूरी होती हैं, इसमें न्यूमेटोफोर, एरियल रूट्स वाले पौधों, और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में कोरल रीफ्स के संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है। हालिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक समुद्री सम्मेलन ग्लोबल ओशियन कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया है। जलीय जीवन का संरक्षण के लिए आवश्यक है कि जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन की रोकथाम की जाए। प्रदूषकों का जलीय जीवन तंत्र में जैविक बहुलीकरण, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं हो सके, अल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन नहीं होने पाए, ताकि जल की जीवन धारण क्षमता, लाइफ कैरिंग कैपेसिटी बनी रहे और सतत तौर से जलीय जीवन तंत्र को संरक्षित रखते हुए जलीय उत्पादों का मानवीय उपभोग किया जा सके। अपशिष्ट जल को नदी में प्रवाहित करने से पहले इसे शुद्ध करके जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इससे जलीय जीवन तंत्र का संरक्षण होगा। इसके लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाई जाती हैं। टेम्स नदी की तरह जो वहाँ लंदन का टेम्स नदी है, उसके मॉडल पे उसका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट को भी दुनिया के अलग अलग जो शहरी आबादी के क्षेत्र हैं, जहाँ की शहरी क्षेत्रों से वेस्ट डिस्पोजल के कारण नदी गंदी हो गई है, उनको सही किया जा सकता है। मैं जब दिल्ली में रह के अपना काम कर रहा था तो जमुना नदी के किनारे भी मैंने देखा कि थोड़ा बहुत प्रदूषण था, लेकिन जगतपुर के आसपास का नदी का जल थोड़ा साफ था, उधर लोग स्नान भी करने जाते थे, अच्छा लगता था। हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था, जो कि अच्छा रहा था। मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एडवोकेसी की बात करते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोबेबल कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, sincere acknowledgement of the risk and threats related with climate change, and prompt implementation of the possible factors as specific remedies of environmental degradation for each factor would be required consistently to assure sustainability of healthy survival and existence of life and biodiversity on our planet Earth. I would like to put forward these arguments to the United Nations Environmental Programme, United Nations Framework Convention on Climate Change also, and other distinguished delegates of the member nations of the United Nations could sincerely assure technical and financial resource acquisitions and allotment to the concerned stakeholders and service providers so that feasible solutions could be assured at community level to assure socio-economic feasibility of program sustainability, and we can protect the survival of life on this planet Earth with our consolidated efforts. So हम एक इस छोटा सा कमेंट देना चाहेंगे कि लाइक गांव और ननिहाल में सितंबर 2024 से रहते हुए परिजनों और परिचितों से सामान्य सहयोगी व्यवहार का अनुभव किया। एक दो लोगों की कड़वी बातों से मन खिन्न भी हुआ। तो आसपास में देखते हैं, इसके लिए एक कहावत है कि मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, यानी अच्छा से बात विचार करें तो ठीक होता है। इसके लिए हमें ध्यान देना होता है।
एक क्वेश्चन है कि टेस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंसर्न नेशंस में सिंपली डिक्लेयर सीज फायर by their command of order as they might have commanded fire in past. It's so simple, but depends upon their next order of command sooner or later. In case of any armed conflict erupted misconceptually or due to certain hidden factors which is unable to be expressed by the audience and viewers and spectators from different parts of the what we can say globe, but the victims and survivors of victims should be protected and provided adequate resources as well as solution for their revival and mainstreaming during the process of rehabilitation and resettlement process for humanitarian services and law enforcement. Like express your opinion about given statement. Like whatever arguments, whatever presentations are being presented, communicated. After all, democracy depends upon participatory conversations. The way how people participates and communicates with each other, it assures the enforcement of democracy properly. Then how could peace prevail sustainably? Suggest your thoughts at United Nations. You should suggest your suggestion that how could peace prevail sustainably? Suggest your thoughts at United Nations. Then it's an appeal for ceasefire. And an appeal for ceasefire should be promptly or instantly or immediately and anonymously favored because you can present your argument for the given statement. Then the action points to support victims of forced displacement at the venue of immigration, like daily and timely food delivery. Number two, temporary or permanent housing and sanitation facilities, infrastructure development. हम भी अपने घर पे काम करवा रहे थे, हमारे मिस्त्री जी लोग भी हैं, तो हाथ हाय हेलो कर दीजिए मिस्त्री जी। तो हम लोग भी घर बनवा रहे थे, सबका अपना सहयोग था। तो जो वहाँ एरिया है वहाँ पे लोग अनऑर्गेनाइज लेबर्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और सबके माध्यम से इसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है. So I would like to continue once again as follows, like action points to support victims of forced displacement at the venue of immigration, like daily and timely food delivery, temporary or permanent housing and sanitation facilities, infrastructure development, establishment of schools for children, enrollment in health testing and healthcare services survey and establishment of healthcare institutions, then employability skills survey and deployment to work in existing and or new establishment to grant employment, then care of children, women and handicapped and old age human, again rehabilitative and rehabilitation support, like action point to support victims of forced displacement at the venue of immigration that I have shared you recently. दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर रैपिड एम्बुलेंस मेट्रो परियोजना से गांव-गांव या अंचलों को एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और अन्य सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से जोड़ने वाले परियोजनाओं से भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को बल मिलेगा. आने और जाने वाले राह के बीच रोड की बॉर्डर भी बनाई जानी चाहिए. Infinity pervades all across the universe. These were few of the points I have written earlier. Again, I would like to put forward a question for brainstorming sessions. Like if I am writing by typing in my message application on my own number, then who had stopped my previous messages and why? If it is being delivered to the beneficiaries, then they could evaluate, they can utilize it for their educational and other research purposes. But education should be respected to adore the knowledge and gain wisdom. I am Chandan Kumar Mishra. My Aadhaar card number is 415084834584. I am writing by typing in my message application on my own number +918860827901. Then who had stopped my previous message and why? Again, a question like signify the utility of given statement. Like, and after all, you are secured and free to search the keywords, watch and learn on digital and print media by yourself. You should learn to explore on Internet Explorer, on Google, on YouTube, and it will help you to improve your knowledge and to become aware about the happenings and
what we can say issues taking place across the globe at your local level also. श्री गणेशाय नमः। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित कुछ सुझाव है। आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड फ्यू सजेशंस रिगार्डिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टू द concerned authorities of National Disaster Response Force and United Nations Disaster Risk Reduction Capacity. पृथ्वी पर हमारी मानवीय समाज को अपने जीवन यापन के दौरान बहुत प्रकार के खतरों से सामना करना पड़ता है। यदि समय रहते हुए निम्नलिखित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इनसे अक्सर मानवीय जीवन असमय काल कवलित हो जाता है और अधिकांश केस में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि कम उम्र में विवाह होने पर, गर्भधारण होने से प्रसव संबंधित कठिनाइयों के कारण किशोरी और गर्भस्थ शिशु की मौत। दूसरा, सामान्य उम्र पर विवाह होने पर भी गर्भधारण के दौरान माताओं को संतुलित आहार की आपूर्ति और प्रसव पूर्व मातृ व शिशु की समुचित स्वास्थ्य देखभाल के अभाव में मातृ व शिशु मृत्यु। नंबर 3, लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु। 4, घरेलू या अन्य प्रकार से शाब्दिक, शारीरिक, मानसिक और यौनिक हिंसा के कारण मृत्यु। 5, किसी प्रकार से सुरक्षा चूक के कारण जहरीले हो चुके खाद्य पदार्थों के सेवन, जल प्रदूषण, शुद्ध पेयजल आपूर्ति की कमी और स्वास्थ्य व स्वच्छता सेवा की अभाव के कारण उत्पन्न हुई बीमारी के कारण मृत्यु। 6, घर या समुदाय में प्रदूषण के कारण रोगाणुओं और उनके वाहक पैथोजेंस एंड देयर कैरियर वेक्टर्स के पनपने से उत्पन्न हुई संक्रामक बीमारियों से उपजी महामारी और गैर संक्रामक बीमारियों से मृत्यु। 7वां है विषैले कीड़े और जीवों के काटने से मृत्यु। 8वां, कलह और लड़ाई में हिंसा से मृत्यु। 9वां, दुर्घटना से मृत्यु। 10, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सुखाड़, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, तूफान, सुनामी, लू, शीतलहर, तड़ित झंझावात, वज्रपात, बादल फटने और अग्निकांड से मृत्यु। 11, सैन्य या नागर हिंसक झड़प में मृत्यु। 12, तिरस्कार या सामाजिक उपेक्षा और सरकार द्वारा देय नागरिक सुरक्षा योजनाओं के सेवा को प्राप्त होने में देरी के कारण उत्पन्न हुए मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में मृत्यु। 13, शीघ्र पहुंचने लायक दूरी पर निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता में अभाव, समय पर चिकित्सा हेतु परिवहन, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने में देरी, चिकित्सा संबंधित औषधियों, तकनीकों और अवसंरचना की कमी, चिकित्सा में लापरवाही, चिकित्सा के दौरान या उपचार के बाद स्वस्थ होने तक पोषण, पानी और स्वच्छता देखभाल की कमी के कारण मृत्यु। चोरी, डकैती, छीना झपटी और अपहरण की कोशिश के दौरान आपराधिक हिंसा से मृत्यु, किसी प्रकार से आत्महत्या, बंधक में मृत्यु, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ज्यादती के कारण मृत्यु, न्यायिक दंड द्वारा मृत्यु या प्राकृतिक तौर से मृत्यु, आदमखोर मांसाहारी जानवरों द्वारा शिकार के दौरान मानवों को खा जाने के लिए किए गए हमले के कारण मृत्यु या अन्य कारण हो सकते हैं। किसी भी हाल में अगर किसी का जीवन अधिकार का हनन हुआ है तो उनके लिए न्यायिक प्रवर्तन किया जाना चाहिए। जांच करके पीड़ित और उनके परिवार वालों को आवश्यक न्यायिक और पुनर्वास सहयोग दिया जाना चाहिए। उपरोक्त उदाहरणों से यह साबित होता है कि मनुष्यों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संगठित और सतर्क रहते हुए उपरोक्त जीवन के लिए खतरनाक समस्याओं का सतत तौर से समाधान किया जाना चाहिए और आजीवन सभी मनुष्यों को जीवन रक्षा और जीवन यापन सहयोग दैनिक तौर पर प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए हम अगली बार आपसे और कुछ विचार के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।